Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone and welcome you all in our first online lecture. Today we will start. Before this, everyone is getting our noise. Yes, sir. Everyone clear? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we will start our new unit. We will start because we have to do all these to cover your time. We will start the nervous Okay, system. start. Basically, this is the most, we can say, the most lengthy topic of your second year MBBS is nervous system. It consists of many chapters. And also, this is most important because half of the course of the second year depends upon nervous system and special senses. So we'll start today nervous system. I will give you introduction about the nervous system. This is from the first chapter of nervous system from the Guyton. Now, nervous system, we will study के what is nervous system in this introduction class. के nervous system क्या है, उसका काम क्या है, what are the components of that, क्या क्या चीजें include होंगी इसमें, that all we will do. Before this, you should have clear concept के what is the function of this nervous system. Now, from morning to evening and from head to toe of human body, basically multiple functions are operating in day and night. Like we eat different things, we inspire and expire, we do the process of the respiration, digestion, metabolism is going on in our human body. These all systems are operating at the same time. So there should be a system to control all these systems. That system is actually nervous system. कि सुबह से शाम तक जो हमारी बॉडी के अंदर एक्टिविटी चल रही है उस एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाला सिस्टम नर्वस सिस्टम है. तमाम बॉडी के तमाम फंक्शंस को नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है और ये आगे चल के पढ़ेंगे कैसे कंट्रोल करता है. फॉर दैट पर्पस एक्चुअली नर्वस सिस्टम शुड हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द ईच एक्टिविटी ऑफ ईच ऑर्गन. वो इंफॉर्मेशन नर्वस सिस्टम तक पहुंचती है. नर्वस सिस्टम sometimes store that information, integrate that information and do function according to that received sensory information, act according to demand of the body. So this is important system. There are two control system of human body. One is nervous system, other is endocrine system. Nervous system is superior than endocrine system because it also controls the endocrine system. So first of all, what are the components of nervous system? Nervous system composed of the brain, spinal cord, different nerves means different fibers, sensory receptor which will receive different informations. Now, what is its function? It is responsible to receive information from the body, integrate that information, and it will do action accordingly. According to the sensory information it will receive, it will do accordingly. What are its subdivision? It is divided into central nervous system and peripheral nervous system. What is central nervous system? जैसे कि नाम से है कि it will be in center. कि ह्यूमन बॉडी में सेंटर के ऊपर प्रेजेंट होता है. इट कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड. आर यू सीइंग के in the picture the brain is in center, spinal cord is in center. That is why this system, this part is known as central nervous system. This is a part of nervous system.
अदर पोर्शन इसके उसको कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंटर के अलावा जो भी नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं ह्यूमन बॉडी में जो काम करते हैं, दैट इज नोन एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दैट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स व्हाट, के इट इंक्लूड्स द डिफरेंट नर्व्स। जैसे इस डायग्राम में देख रहे हैं पेरिफेरल नर्व्स लिखा हुआ, ये नर्व्स हैं राइट पे लेफ्ट पे। इन द सेंटर देयर इज ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। वो डिफरेंट नर्व बॉडी के ऑर्गन को लाइक हैंड फीट उनको कनेक्ट करते हैं स्पाइनल कार्ड से या ब्रेन से। तो दिस पेरिफेरल इज आल्सो कनेक्टेड विद द सेंट्रल। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मींस सेंटर के बाहर जो नर्वस सिस्टम है। It includes nerve outside the brain and spinal cord. It will include sensory nerves which will carry sensory information to the nervous system. It will also composed of motor nerves के जो central nervous system से मैसेज लेकर जाएंगे बाहर। अदर के ऑटोनॉमिक nerves हैं sympathetic और parasympathetic nerves that is also included in peripheral nervous system. So we can say कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर सेंसरी सिस्टम, मोटर सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये पार्ट्स हैं फर्दर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। Now other diagram, this diagram is functional organization of peripheral nervous system के एक तरफ ये देखें कर्सर जो आ रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम कह रहे हैं, यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आएगा, ये सेंसरी एफरेंट डिवीजन एंड मोटर डिवीजन मींस मोटर पार्ट एंड सेंसरी पार्ट। सेंसरी में क्या है कि सोमैटिक सेंसरी मींस के ह्यूमन बॉडी के हैंड, लिम्स, फीट, वहां से जो इंफॉर्मेशन है वो जिस सिस्टम के थ्रू नर्वस सिस्टम के पास आ रही उसको हम कहेंगे सोमैटिक सेंसरी। और स्पेशल सेंसेस भी इसमें आती हैं जैसे हियरिंग, इक्विलिब्रियम, विजन। सोमैटिक सेंसरी के अंदर वी हैव टच, पेन, प्रेशर, वाइब्रेशन। अब नाउ सपोज करें कि यू हैव पिन प्रिक इन योर हैंड, आपके हाथ के ऊपर एक पिन चुभी, कोई भी कील चुभी, पिन चुभी, फौरन आपका नर्वस सिस्टम जान जाएगा कि कोई गड़बड़ है, आपको दर्द होगा। ये फीलिंग ऑफ दैट पेन, दर्द, वो नर्वस सिस्टम तक कैसे पहुंचेगा, वो डिफरेंट नर्व्स के थ्रू आएगा। पहले तो एक रिसेप्टर होगा जो उस सेंस को इलुसिडेट करेगा कि दर्द हुआ, फिर वो मैसेज उस रिसेप्टर से इन दीज नर्व्स, ये सोमैटिक सेंसरी जो लिखा है उन नर्व्स में जाएगा, वहां से फिर स्पाइनल कार्ड, फिर ब्रेन के पास, और ब्रेन जान जाएगा इंफॉर्मेशन पेन के बारे में, या कोई चीज फिंगर से टच हुई, गर्म है, ठंडी है, या कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टच हुआ, आपके हाथ में मोबाइल है, वाइब्रेशन हुई, यू फील, चाहे आप उसको देख नहीं रहे लेकिन आपको फील होगा कि वो वाइब्रेट हो रहा है। और टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन स्किन से, ये तमाम इंफॉर्मेशन सेंसरी नर्व्स के थ्रू जाएगी इन द नर्वस सिस्टम एंड दैट पोर्शन इज पेरिफेरल। प्लस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द विसराज, लाइक स्टमक के अंदर जो है अगर पेन हो रहा है स्टमक का, कोई ऐसी चीज खाई जिसकी वजह से तेजाबियत बढ़ी, दर्द हुआ, या किसी को स्टमक का अल्सर है वहां से पेन हो रहा है, तो वो पेन स्टमक का विसरा से, वो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आएगी थ्रू सेंसरी नर्व, फिर वो भी दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। देन nervous system will receive that information and will act according to that information, और nervous system फिर कुछ नर्व्स के थ्रू एक्शन करेगा। लाइक इफ अगर हमने हाथ मूव करना है, इफ वी हैव टू डू एनी मोटर स्केलेटल एक्टिविटी, तो हम क्या करेंगे, हाथ को, पाँव को जो मूव करेंगे दैट विल मूव थ्रू मोटर सिस्टम, और मोटर एफरेंट डिवीजन होगी वो, and that will be through the somatic nervous system. Plus also के हमारे पास we have a system autonomic nervous system जिसमें parasympathetic and there are two divisions, parasympathetic, sympathetic division. These function of sympathetic nervous system for emergency and parasympathetic nervous system for rest. That also is through nerves. These nerves are known as autonomic nervous system. That is also a division of peripheral nervous system.
तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जनरली तमाम वो नर्व्स आती हैं जो सेंसेशन जिस्म से लेके आती हैं, चाहे वो हैंड और लिम्ब से हैं, चाहे विसरा से हैं। प्लस में वो नर्व्स हैं नोन एज मोटर नर्व्स जो इंफॉर्मेशन नर्वस सिस्टम से बॉडी के अंदर लेके जाएंगे, चाहे वो मोटर नर्व्स हैं चाहे ऑटोनॉमिक नर्व्स हैं। मोटर नर्व्स मूवमेंट करवाएंगी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अगर सिंपैथेटिक हैं तो वो काम करेंगी एंड विल प्रिपेयर द बॉडी टू प्रिपेयर इट फॉर द इमरजेंसी कंडीशन। अगर पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है तो वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट में काम करेंगे। तो दैट विल डू फर्दर। नाउ इंपॉर्टेंटली के नर्वस सिस्टम जैसे वी हैव डन, यू हैव डन के इन फर्स्ट ईयर के different organ comprises of different cells, like हेपेटोसाइट फॉर्म द लिवर, कि लिवर का जो काम है हेपेटोसाइट की वजह से होता है। इसी तरह समझना है कि नर्वस सिस्टम का काम कौन से सेल करेंगे। सो देयर विल बी टू टाइप ऑफ सेल इन नर्वस सिस्टम, दो किस्म के सेल होंगे। वन बेसिक नर्वस सिस्टम सेल, दीज आर नोन एज न्यूरॉन। These are basic structural and functional units of nervous system, neurons. So actual nervous system cells are known as neurons. These are specialized cells, different from the other cells. अदर न्यूरॉन को कुछ सेल सपोर्ट करेंगे, उनको कहेंगे न्यूरोग्लिया या ग्लियल सेल्स। वो कौन से होते हैं आगे आएगा। दिस सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट दिस सेल्स। तो ये हमारे जहन में हो। द डायग्राम जो आपको नजर आ रही है दैट इज कंपोज्ड ऑफ दिस न्यूरॉन, सीइंग के न्यूरॉन having specialized structure, some fiber structures coming from the its cell body where nucleus is located. This portion is known as its cell body. Other are its processes. In the processes there is axon, there are dendrite. You already know this. So actual cells are neuron plus some supporting cell known as neuroglia, collectively are glial cells. So दिस इम्पोर्टेंटली ये जो डायग्राम है वेरी इंपॉर्टेंट, इसके एक एक एस्पेक्ट को आपने समझना है कि व्हाट इज दैट कि न्यूरॉन इज बेसिक एज वी हैव सीन के बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट इज नोन एज न्यूरॉन। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में अगर आप देखें दिस पार्ट, दिस इज नोन एज न्यूक्लियस, where nucleus is located. This whole ये अगर देखें मेन सेल यहाँ है न्यूक्लियस का, around the nucleus main cell of the neuron is here. This is known as cell body. Cell body is also called as soma. So न्यूरॉन के बारे में इंपॉर्टेंटली कि न्यूरॉन बाकी ह्यूमन बॉडी के सेल से काफी डिफरेंट है। इसमें सिर्फ वो चीजें हैं बिकॉज डेलिकेट स्ट्रक्चर है, इट कंट्रोल ऑल दी अदर सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो इसमें वो चीजें हैं सिर्फ जो उसकी जरूरत है, गैर जरूरी चीजें नहीं है वहां पे सेल के अंदर। तो जरूरी चीजें उसकी सेल बॉडी, वहाँ न्यूक्लियस है और कुछ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील हैं, बाकी ज्यादा ऑर्गेनील नहीं है एज कंपेयर टू अदर सेल्स। इसके से न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ऐसे है कि जैसे एक धागे फ्री हो और लपेट दें किसी गेंद के ऊपर और वो धागे लटके उस गेंद से, तो कुछ छोटे धागे होते हैं कुछ बड़े धागे होते हैं। स्मॉलर फाइबर आर मल्टीपल, एक से ज्यादा होते हैं, these are known as dendrites. Larger fiber mostly एक होता है जिसको कहते हैं axon. Axon sometime covered with myelin sheath, कभी कभी myelin sheath से cover होता है तो फिर वहां हम कहते हैं कि myelinated है। और ये देखें माइलिन बनाने का सेल भी यहाँ नजर आ रहा है, श्वान सेल, और माइलिन शीट के अंदर एक गैप्स भी नजर आ रहे हैं, नोड ऑफ रेनवियर दैट इज कॉल्ड, दिस यू नो ऑलरेडी फ्रॉम योर नॉलेज ऑफ इंटर। एक्सॉन टर्मिनल लिखा है कि एक्सॉन है, यहाँ पे इसके टर्मिनल है जहाँ पे वो दिस कैन बी अटैच्ड विद अदर न्यूरॉन्स, और अटैचमेंट को आगे हम पढ़ेंगे दैट इज नोन एज साइनेप्स।
नाउ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इंपॉर्टेंटली के टिपिकल न्यूरॉन जो होता है उसके 4 ऑर्गन एंड इंपॉर्टेंट एज इन प्रीवियस डायग्राम के इट हैव सेल बॉडी, it has dendrites, it has larger axon, this one, it has a terminal which receive the information from the other neuron, that is known as presynaptic terminal. Also it has postsynaptic terminal जो है वो भी होता है दूसरी तरफ. तो each region is specialized for its particular function. Information flow in a single direction importantly. ये इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन की तरफ एक डायरेक्शन में जनरली ट्रेवल करता है, नॉट इन रिवर्स डायरेक्शन. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन के जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं दैट आर नोन एज न्यूरॉन, जो स्पेशल सेल हैं वो कितने किस्म के होते हैं. फंक्शनली मींस जो उनका काम है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन दे मे बी डिवाइडेड इनटू सेंसरी न्यूरॉन लिखा हुआ है. सेंसरी मींस के ये वो न्यूरॉन होंगे दैट विल रिसीव इंफॉर्मेशन. किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन रिसीव करने वाले न्यूरॉन्स को कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स. They carry impulses from the sensory receptors. Cutaneous skin organ मतलब स्किन के अंदर कोई ऑर्गन है वहां से रिसीव करेंगे या किसी और सेंसरी रिसेप्टर से. आर प्रोप्रियोसेप्टर्स यानी जॉइंट के रिसेप्टर होते हैं. ये आगे आएगा सेंसरी सिस्टम में डिटेल से कि व्हाट आर प्रोप्रियोसेप्टर्स. तो जनरली आप याद करें कि सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन हैं जो किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन रिसीव करके ब्रेन के पास पहुंचाने वाले न्यूरॉन है. दीज आर नोन एज सेंसरी. A से efferent means these are two words. Nervous system so known as efferent from A. Other are motor neuron from E, efferent. They carry impulses from the central nervous system. Central nervous system से किसी भी किस्म की information जो body की तरफ जाती है that is known as carried through motor या efferent neurons. तो इफ्रंट न्यूरॉन मोटर इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं ब्रेन से बॉडी की तरफ. अदर न्यूरॉन वो होते हैं जो सेंसरी और मोटर को कनेक्ट करते हैं. यानी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है वो एक न्यूरॉन के साथ कनेक्ट होती है फिर ब्रेन के पास जाती है या मोटर के पास जाती है. दैट इज फंक्शन ऑफ इंटर न्यूरॉन. सो दीज आर फाउंड इन न्यूरोनल पाथवे इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर दे कनेक्ट सेंसरी और मोटर न्यूरॉन. तो ये दिस डायग्राम क्लियरली डिस्क्राइब. इस डायग्राम को अगर आप देखें तो इसमें many information is given, very important information. Generally ये देखें ऊपर when you see one nerve and its fiber have been labeled as blue. जैसे ये आप देखें डेंड्राइट्स लिखा हुआ है, ये ब्लू है. रिसेप्टर लिखा हुआ है मींस यहाँ ये वो ऑर्गन है जहाँ से इंफॉर्मेशन डिटेक्ट होती है. फिर ये रिसीव करते हैं पेरिफेरल प्रोसेस एक्सॉन से. एफरंट ट्रांसमिशन लिखा हुआ एरो दिए यानी ब्रेन की तरफ इंफॉर्मेशन जा रही है. फिर ये उस न्यूरॉन की सेल बॉडी है वहां पे इंफॉर्मेशन आती है. यहाँ से इंफॉर्मेशन जाती है आगे जाके एसोसिएशन इंटर न्यूरॉन के पास. इंटर न्यूरॉन फिर ये कम्युनिकेट करता है, साइनेप्स करता है, इंफॉर्मेशन देता है आगे मोटर न्यूरॉन को. देखें रेड न्यूरॉन मोटर है, green is sensory interneuron, sorry, red one is the motor neuron. वहां से इंफॉर्मेशन फिर जाती है efferent information to the effectors. effector may be muscle or the gland. यानी ब्रेन इंफॉर्मेशन लेता है सेंसरी न्यूरॉन से, वो इंफॉर्मेशन इंटरन्यूरॉन के पास आती है, देन मोटर के पास जाती है. मोटर एक्ट करता है अकॉर्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन. सो फंक्शन वाइज 3 किस्म की न्यूरॉन इस डायग्राम में है. सेंसरी ब्लू, inter green, motor red one. So this is classification of the different types के कौन से टाइप्स हैं न्यूरॉन के. और ये आप देखें एक ही डायरेक्शन में सेंसरी इस डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है इन सिंगल डायरेक्शन. मोटर एक डायरेक्शन में लेके जा रहा है टुवर्ड्स इफेक्टर इन सिंगल डायरेक्शन. इंफॉर्मेशन सेंसरी के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाएगी, रिवर्स नहीं होगी. Now again neuron anatomy same diagram repeated के there is a cell body और ये न्यूरो फाइबर्स होते हैं. अंदर भी nasal substance है. nasal substance are endoplasmic reticulum of neuron means this forms the protein necessary for the neuronal function.
और ये अगर आप देखें ये माइलिनेटेड एक्सॉन है, ये बीच के अंदर गैप्स है, दैट गैप इज नोन एज नोड ऑफ रेनवियर, हियर इज मेंशन नोड ऑफ रेनवियर। तो Schwann cell यहाँ शो किया, Schwann cell form that myelin sheath. These are axon terminals. Each terminal will be attached with the other neurons. So this same diagram is repetition of the structure of the neuron and its different processes. Also mitochondria is given. So important organelle like mitochondria, nasal granule, nucleus, these will be present in the neuron cells. Extension outside the cell body are dendrites. Mostly dendrites receive the impulses toward the soma. ये आप एरो के अंदर भी देख रहे हैं कि dendrites का एरो दिया है toward soma. ये different information other neurons से other fibers से receive करते हैं और वो information soma cell body की तरफ आती है. Axon generally देखें axon में the arrow is given कि they carry information away from the cell body. See here. They will carry information from the cell body up towards away from the cell body. The information of the central nervous system is labeled as, that is called as impulse. Central nervous system में जो information travel करती वो that is known as the action potential of nervous system. That is also known as impulse. So impulse transmission जो होगी dendrite में towards soma, axon में away from the soma. That will be its pattern. Individually axon is given here. We will concentrate more on axon के what it do. It generate and transmit the action potential, means current of the nervous system. It also secrete neurotransmitter from the axon terminal. That neurotransmitter will work in synapse. आगे पढ़ेंगे कैसे synapse. तो ये impulse को travel करवाता है और also secrete करवाता है neurotransmitter. दो काम बताएं. एक्सॉन के साथ सम एक्सॉन आर माइलिनेटेड एज सीन इज इन दिस डायग्राम कि ये नर्व फाइबर है, इसके अराउंड ये लेयर्स हैं, शीट है. यहाँ पे तो कलर अलग है. बेसिकली दिस शीट इज व्हाइटिश, दैट इज नोन एज माइलिन शीट. सो रिटन एज व्हाइटिश फैटी प्रोटीन लिपिड सेगमेंट शीट अराउंड मोस्ट लॉन्ग एक्सॉन. व्हाट विल बी इट्स फंक्शन, मीन व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ माइलिन शीट कि इट विल प्रोटेक्ट दैट नर्व. देखिए हर तरफ से नर्व को कवर करता है, तो मेन काम इसका फर्स्ट काम ये होगा कि नर्व को प्रोटेक्ट करता है किसी भी इंजरी से. नेक्स्ट कि इट इज कॉल्ड एज कि इट हैज इंसुलेटिंग इफेक्ट. आपने देखा होगा घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की तार है, अंदर जो कॉपर की तार होती है उसके अराउंड प्लास्टिक की कवरिंग होती है. वो कवरिंग का क्या मतलब है, उसको कहते हैं इंसुलेट करता है उस एरिया को, उसका इंसुलेटर है इलेक्ट्रिसिटी का. सेम इफेक्ट ये माइलिन शीट प्रोवाइड करती है फॉर दैट नर्व्स. किसी भी नर्व, जिस नर्व के ऊपर माइलिन शीट है वो उसके ऊपर इंसुलेटिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, उसको इंसुलेट करता है. थर्ड, जब ये शीट होती है नर्व के ऊपर तो जो इम्पल्स है, द इम्पल्स ट्रेवलिंग इन दैट नर्व, that travels speedy, rapidly. तो वो rapidly travel करता है, speed of conduction उसकी बढ़ जाती है, तो that is known as increasing the speed of nerve impulse. That is also its function. Myelin का लिखा है कि how it is formed. Myelin sheath is present in the central nervous system, means कि ये brain और spinal cord में भी होती, also in the peripheral nervous system. Now you have to remember कि central nervous system में ये myelin sheath जो cell बनाते हैं that is known as oligodendrocytes. And peripheral nervous system mean peripheral nerves, चाहे वो motor nerve हो, sensory nerve हो, autonomic nervous nerves हो, वहाँ पर ये sheath बनाते हैं special cells known as Schwann cells. So this is a BCQ question, may come sometime के how this sheath is formed, so you should remember this. Now here another structure is shown that is known as node of Ranvier. कि आप देखें कि ये एक सेंसरी या कोई भी नर्व दिए, आइदर सेंसरी और मोटर देखें, उसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आप ऊपर अगर देखें एरो बता रहा है कि इस डायरेक्शन में इसमें करंट ट्रेवल कर रहा है. नाउ सी के जो
there is gaps in that sheath. That gaps are known as myelin sheath gap or node of Ranvier. Now what will be its function के इन gaps के अंदर देखिए सोडियम आयन की एंट्री होगी and due to entry of sodium ions यहाँ पर जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स होगी, जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल होगी और एंड एक्शन पोटेंशियल विल बी प्रोपिगेटेड फ्रॉम दीज नोड्स इन जंपिंग मैनर and that propagation is known as saltatory conduction. So gaps in the myelin sheath between adjacent Schwann cell, these are known as written in that slide, sites of saltatory conduction. Saltatory conduction क्या है कि jumping manner के अंदर impulse का travel होना, that is known as saltatory कंडक्शन. ये जंपिंग मैनर में जब ट्रेवल करता है इम्पल्स उसको हम साल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं. अदर इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इन इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम के उसके लिए इंपॉर्टेंट थिंग है कि साइनेप्स क्या है. What is synapse? So synapse are known as कि these are functional communication between two neurons. अब इसको अंडरस्टैंड ऐसे करना आप करेंगे कि this is basically what, जैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, we communicate by what? Now as we are nowadays communicating through that Zoom software कि मैं अपना मैसेज आपके पास कन्वे कर रहा हूँ थ्रू Zoom सॉफ्टवेयर. बीच में अगर Zoom सॉफ्टवेयर ना होता इस वक्त तो हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते. इस तरह आप किसी कॉलीग से थ्रू लैंग्वेज कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बात उन तक पहुंचाते हैं. कोई भी बात है आप बोलते हो वो सुनते हैं, तो दैट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन. इसी तरह साइनेप्स क्या है? साइनेप्स इज बेसिकली कम्युनिकेशन ऑफ टू न्यूरॉन्स. एक न्यूरॉन अपना मैसेज दूसरे न्यूरॉन तक कैसे पहुंचाता है, दैट इज रोल ऑफ साइनेप्स. एक न्यूरॉन अपनी इंफॉर्मेशन, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन दूसरे में कैसे ट्रेवल करवाता है, दैट इज फंक्शन ऑफ साइनेप्स. अब साइनेप्स की टाइप्स होती हैं, टू टाइप्स ऑफ साइनेप्स. वन इज नोन एज केमिकल, अदर इज इलेक्ट्रिकल. इंपॉर्टेंटली ब्रेन के अंदर जो है केमिकल साइनेप्सेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस. वो केमिकल साइनेप्स क्या होता है सामने इस स्लाइड के अंदर इट इज क्लैरिफाइड. दिस इज फ्रॉम योर गाइटन book Guyton कि this have shown that chemical synapse. Chemical as its name indicate कि this will be a communication through chemical substance. वो कैसे होगा? आप यहाँ अगर आप देखें दो न्यूरॉन के टर्मिनल दिखाए गए, एक ऊपर वाला एक गैप से, that is known as pre-synaptic, written as pre-synaptic terminal. Pre-synaptic terminal का मतलब वो टर्मिनल जहाँ से मैसेज आ रहा है. पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल न्यूरॉन, उस न्यूरॉन का पार्ट जो मैसेज रिसीव कर रहा है. नाउ सी के प्री साइनेप्टिक टर्मिनल के अंदर ये लिखा हुआ है साइनेप्टिक वेसिकल, देन लिखा हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर के. इसके पास जब सिग्नल आएगा, देखें एरो ऊपर दिखाया गया, एक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ. जब न्यूरॉन के अंदर उसका करंट एक्शन पोटेंशियल विल कम, see here calcium ion will be entered. Due to entry of calcium ion, this neurotransmitter will come here, this vesicle, and this transmitter substance or neurotransmitter. न्यूरोट्रांसमीटर का दूसरा नाम ट्रांसमीटर सब्सटेंस भी है, या वो केमिकल सब्सटेंस जो दो न्यूरॉन की आपस में बात करवाता है, दैट इज नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर. ये रिलीज होगा. ये न्यूरोट्रांसमीटर फिर देखें कि पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल में अपने रिसेप्टर के ऊपर अटैच होगा, और रिसेप्टर के ऊपर अटैच होने के बाद क्या होगा कि ये रिसेप्टर एक्टिवेट होगा और ये मैसेज दूसरे न्यूरॉन में ट्रेवल हो जाएगा और दूसरा न्यूरॉन एक्ट करेगा. क्या करेगा? लिखा हुआ सेलुलर रिस्पॉन्स. मे बी कि इनका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाए, मे बी देयर मे बी सम केमिकल रिएक्शन वहां पर जनरेट हो जाए, या कोई जीन एक्सप्रेशन हो, कोई नई चीज बने उसके. So that is the theme of synapse. Chemical synapse is operating through a chemical substance. That chemical substance is known as a neurotransmitter that will be released from presynaptic terminal, will act upon postsynaptic terminal.
So this is one type. Second type of synapse is known as electrical synapse के डायरेक्टली कुछ इलेक्ट्रिकल चैनल होंगे जिनके थ्रू एक्शन पोटेंशियल प्री सिनेप्टिक टर्मिनल से पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल में ट्रेवल होगा. देखें यहाँ पे इंट्रासेलुलर गैप कम है एज कंपेयर टू प्रीवियस वन. यहाँ गैप ज्यादा था, यहाँ गैप कम है और डायरेक्टली चैनल है. गैप जंक्शन चैनल लिखा है. यहाँ चैनल से आयन आएगा जो अपने साथ आयन भी एक्शन पोटेंशियल आएगा और वो पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल में ट्रेवल करेगा. So here ends our today's lecture. इसमें just introduction थी कि what we have discussed in today's lecture के न्यूरॉन क्या है, what is neuron, what is its function के generally nervous system क्या है. Again we'll revise के what we have done. We have done के we can revise from this diagram के we have done के brain is an important organ, nervous system is an important system which control basically all the other system of human body that are under control of the nervous system. Nervous system is composed of two portions: central nervous system, which is its part have brain and spinal cord, and other are the beside this brain and spinal cord known as peripheral nervous system. Nervous system operates through special cells known as neurons. There are different type of neuron, functionally, structurally, and different type of nerves. Functionally, हमने देखा कि some neuron receive information known as sensory neuron. Some neuron carry information from nervous system to organ known as motor information. Other neuron connect them known as interneuron. That we have done. Next we have done there are also some supporting cell of the nervous system. These supporting cells are known as neuroglial cells. In them importantly we have seen Schwann cell and oligodendrocyte which make the myelin sheath. Function of myelin sheath क्या थी कि it cause the insulation effect. उसका काम क्या था? insulation effect था. प्लस में वो speed of conduction को बढ़ा रहा था. That myelin sheath. And also there were gap in that myelin sheath known as noda pharyngia, which were the sites of the saltatory conduction. And then we have discussed के न्यूरॉन आपस में कम्युनिकेट करते हैं थ्रू साइनेप्स, and these synapses are of two types, chemical and electrical. So after that in next lecture we'll proceed further कि how that nervous system communicate. और एक दो लेक्चर के बाद हम separately system start करेंगे, sensory, motor, वो system हम all system will be started. So any question or any query if any student. सर रिजल्ट कब आएगी? तो उन दोनों स्पेशल सेंसेस में क्या डिफरेंस है? एक विजुअल में भी आपने स्पेशल सेंस से अलग डिवीजन दी है जिसमें आपने हियरिंग और टेस्ट किया है, और दूसरे सोमैटिक में भी आपने स्पेशल की अगर अलग डिवीजन दी है. सर केमिकल सिनेप्सिस के बारे में बताएं. सर इलेक्ट्रिकल Okay, the सिनेप्सिस question was के sir saltatory conduction repeat करें and chemical sign. We were repeating that. ये देखें, this is a nerve having myelin sheath. ये एक नर्व है, आपके सामने स्लाइड है, इस पे myelin sheath है, उनके अंदर एक गैप है. देखिए जहाँ सोडियम की एरो दी है, this is a gap between them. इस नर्व के अंदर ऐसे ट्रेवल कर रहा है एक्शन पोटेंशियल. तो एक्शन पोटेंशियल ट्रेवलिंग के लिए क्या है कि यहाँ से एक जहाँ पे सोडियम इंटर हो रहा है, यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जब प्रोपिगेट करता है, यहाँ से इस दूसरे नोड तक जंप करता है एक्शन पोटेंशियल, और जंपिंग मैनर में इन नोड से ट्रेवल करता है, तो उसकी स्पीड ऑफ कंडक्शन फास्टर हो जाती है. क्यों फास्टर हो जाती है? कि इस गैप से यहाँ पर सोडियम आयन इंटर हो जाते हैं और यहाँ एक्शन पोटेंशियल जल्दी से डेवलप हो जाता है और स्पीड ऑफ कंडक्शन उस एक्शन पोटेंशियल की ज्यादा होती है. इसीलिए इस पॉइंट को कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन. कंडक्शन ड्यू टू एंट्री ऑफ साल्ट सोडियम, एंड दैट is done at the point of the node of pharyngia. One is that. Next you have asked about the chemical synapse. Synapse क्या है? दो न्यूरॉन की आपस में कम्युनिकेशन, that is synapse.
वो कम्युनिकेशन अगर किसी केमिकल सब्सटेंस की मदद से हो रही, दैट इज नोन एज केमिकल साइनेप्स। लाइक इस डायग्राम में आपके सामने कि दिस, यहाँ पर एक केमिकल सब्सटेंस न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है। कहाँ से? एक न्यूरॉन से, न्यूरॉन के टर्मिनल से जिसका नाम है प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, वहां से रिलीज हो रहा है और दूसरे न्यूरॉन के पार्ट में जाके अटैच हो रहा है रिसेप्टर पे, उसको कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल। तो ये केमिकल सब्सटेंस प्री से रिलीज हुआ, पोस्ट पे अटैच हुआ, फिर इसने पोस्ट को स्टिमुलेट किया या अपना मैसेज उस तक पहुंचाया। अब इस न्यूरॉन प्री साइनेप्टिक का मैसेज पोस्ट तक पहुंच गया, लेकिन व्हाट वाज द मीडियम? मीडियम वाज दैट केमिकल सब्सटेंस। इसलिए हमने कहा कि दिस टाइप ऑफ साइनेप्स इज नोन एज केमिकल साइनेप्स। सर फ्लो चार्ट दिखा दें एक बार, जो आपने डिवीजन में दिखाया है 7 स्लाइड में। सर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बताए और ये बताए कि ब्रेन में वो ज्यादा क्यों होते हैं केमिकल साइनेप्स।